ضرب عضب کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ کہانی ان چہروں کی ہے جو معصوم دکھتے ہیں مگر اندر سے خون آلود ہوتے ہیں۔ شہر کے فضا میں ایک عجیب سی بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ سڑکیں سنسان اور سناٹے میں صرف گلی کے کتوں کی آوازیں گونج رہے تھے۔ اچانک ایکبر انی وینر کی دروازہ کھلا اور اندر سے 5 آدمی نکلے۔ سب کے چہرے ڈھکے ہوئے، ہاتھوں میں بریف کیس، آنکھوں میں خوفاور الجھن۔ ابے تو ہیوا را کا ایجنٹ ہے نا جو پچھلی بار چائے پینے میں ہے پکڑا گیا تھا؟ پہلا ایجنٹ دوسرے سے بولا، میں نہیں، وہ نندن تھا، میں تو نارائن ہوں، بس چہرہ تھوڑا ملتا ہے۔ دوسرا ایجنٹ جھجکتے ہوئے بولا۔ اسی لمحے دور سے ایک آواز آئی جیسے کسی نے تعویذ کے اوپر دم کیا ہو۔ بابا تس جھاڑو ہاتھ میں، سر پر مٹی کا کٹورا پہنے بھاگتا ہوا آیا۔ او ظالمو، بند کرو یہ جادو دو ٹونا، یہاں کا نظام بابا 10 کے حکم سے چلتا ہے۔ اس نے اپنا جوتا نکال کر ہوا میں گھمایا۔ ایجنٹس بدحواس ہو گئے۔ ایک نے فٹ پاتھ کے نیچے گھسنے کی کوشش کی۔ اتنے میں کراچی کے لیاری سے آیا ایک نیا کردار داخل ہوا۔ ارے بابا دس، آپ کب سے جوتا منتر میں ٹرینڈ ہو گئے؟ بابا دس نے غصے سے جواب دیا، اوے پنڈت، یہ جوتا نہیں، یہ مار ہے جو سیدھا دشمن کے کیمیکل دماغ پہ لگتی ہے۔ دونوں عامل ایک دوسرے کو گھورتے رہے اور نیچے گھات لگائے بیٹھا۔ ساڈر بلو باند کچرے سے نکلا، اوے یہ پنجابی ایجنٹ ہے یا چائے والا؟ پہلے تو کپ میں دم کرتا تھا، اب خود ہی دم ہو گیا۔ سب کی ہنسی چھوٹ گئی اور ایجنٹ نندن نے کہا، سر ہم بس وزیرستان کی فیکٹری کی تصاویر لینے آئے تھے، سچ مچ کی بکریوں نے ہمیں گھیر لیا۔ اتنے میں بہروز کی ٹیم آ گئی۔ بہروز نے سن گلاسز اتارے اور نیچے سے بابا تس کا دیا ہوا تعویذ نکالا۔ پکڑ لو ان سب کو، ان کی نیت میں کالا جادو اور چائے دونوں شامل ہیں۔ را کے ایجنٹوں کو باندھ کر لے جایا گیا۔ بابا تس نے چاک سے زمین پر دائرہ بنایا اور بولا، اس میں سے گزر کے دکھاؤ اگر اصلی مسلمان ہو۔ پنڈت نے جلدی سے اپنے سہارے والے تل کو چھپا لیا اور بولا، ارے بابا چلیے اب ہم منتر کے ذریعے فیکٹری کا پتہ لگاتے ہیں۔ بہروز نے سر ہلا کر کہا، یہ سب لوگ فی الحال نقب زدہ لاء کی حفاظت میں ہیں۔ اگلے سین میں گاؤں کے میدان میں بڑی سکرین پر خبر چل رہی تھی، آپریشن ضربِ عضب جاری ہے، دشمن کے اسلحہ کے گوداموں پر چھاپے، 5 اور را ایجنٹ گرفتار۔ بابا تس نے مائک پکڑا اور گرج کے کہا، یہ سب میرے سکے آلو کے دم کی برکت ہے۔ بچوں کا ہجوم ہنستے ہوئے بھاگ گیا اور پنڈت نے اپنا لوہے کا تعبیز نکال کر کہا، آج تو صحیح میں مزہ آ گیا۔ آخر میں ایک چھوٹا لڑکا قریب آیا اور بابا دس سے بولا، بابا جی آپ تو مزاحیہ ہیرو نکلے۔ بابا تنہیمے انداز میں کہا، بیٹا جہاں دشمن کو جوتا لگے وہی اصلی آپریشن ہوتا ہے۔ پنڈت جی نے آنکھیں بند کی، ماتھے پر چندن کی لکیراوٹ ہاتھ میں، ایک پر ناسا تویز جیسے وہ واقعی کسی روحانی عملیات میں مصروف ہو۔ مگر جس جگہ وہ بیٹھا تھا وہ کسی مندر کہا خانہ نہیں، بلکہ کراچی کے ایک خالی پلاٹ کے نیچے چھپی ہوئی راکیفی آتشیں فیکٹری تھی۔ سامنے بڑی اسکرین پر ہتھیاروں کی فہرست چل رہی تھی اور پنت کے دائیں جانب بیٹھے ایجنٹ سائے کا یک کر کے میٹریل چیک کر رہے تھے، پنت جی اگلا کھیپ بلوچستان جائے گا، وہاں پگڑیاں باندھ کر کھسنا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے یہ دیکھ لو کہ بارود میں نمی نہ ہو، پچھلی بار جو ہوا وہ تمہیں یاد ہے نا؟ پنڈت کی آواز میں سختی تھی۔ اسی دوران بابا ٹھس اپنی مخصوص ہنسی اور گول ناک کی سیٹی بجاتے ہوئے صوفیائی انداز میں شہر کے ایک چوراہے پر بھنگڑا ڈال رہا تھا، مگر اس کے پاؤں کی چال، ہاتھ کی گردش اور بولنے کے الفاظ سب کے سب خفیہ پیغام رسانی کا حصہ تھے۔ اس کا پیغام ایجنسی کی ٹیم نے ڈی کوڈ کیا تو فائل کھلی۔ پنڈت کا جھوٹ، ہتھیار کی لوٹ، گنجے کا کوٹ، سب کچھ لانڈی کے نیچے چھپ کر بیٹھا ہے۔ کیپٹن حیدر اور انسپیکٹر فیروز ایک ساتھ بڑبڑائے، گنجے کا کوٹ۔ اس کا مطلب ہے
इनका बंदा बशीर गुंजा। वो लांडी में चाय का होटल चलाता है और वहीं से ये रा के एजेंट्स मकामी राबता बनाते हैं। इसी लम्हे एक और इत्ला आती है। रा के 2 एजेंट्स जो कॉलेज स्टूडेंट बनकर कराची आए थे अभी गुलशन इकबाल में सस्ते होटल में ठहरे हुए हैं। कोड नेम चंकी और बंदो। दोनों एजेंट दरअसल पंडित के भांजे थे और इन्हीं की निगरानी में आतिशें, असलहा, ड्रोन और धमाका खेज मवाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में छुपाया जा रहा था। एजेंसी ने फौरी तौर पर एक टीम तश्कील दी जिसमें शामिल थे कैप्टन हैदर, मिशन लीडर, तो इंस्पेक्टर फिरोज, लोकल इंटेलिजेंस, नाजिया, साइबर एनालिस्ट, फॉर चौधरी फतेह खान, ओवर एक्टिंग वाला एजेंट, हर मिशन पर बेवकत की शायरी करता। यारों, आज धमाका नहीं, कहानी का टर्निंग पॉइंट है। दुश्मन को पकड़ेंगे और शायरी में लपेटेंगे। नाजिया, फतेह भाई, आप अपनी शायरी बाद में सुनाएगा, अभी जीपीएस का सिग्नल ट्रेस करना है। चौधरी फतेह ने सर खजाया, शायरी ही में तो सिग्नल छुपा है। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। कैप्टन हैदर की टीम लांडी पहुंच चुकी थी। पंडित की फैक्ट्री के इर्द-गिर्द खामोशी थी, मगर नीचे गड़गड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मशीन चल रही हो। कैप्टन हैदर ने सरगोशी में कहा, बॉक्स नंबर 3 पे धमाका खेज मवाद है, बस खामोशी से काटना है। गड़बड़ हुई तो पूरी गली धमाके से उड़ जाएगी। दूसरी तरफ पंडित ने राके मरकजी ऑफिस को इतला दी, अगला मिशन सियालकोट की मस्जिद के साथ वाली ज़ेर तामीर इमारत है, वहां असलहा मुंतकिल किया जाएगा। ये इतला सुनी ही थी कि चौधरी फतेह के मोबाइल की बेप बजी। फतेह, ओए तोबा, रिंगटोन बंद करना भूल गया। तमाम टीम की नजरें इस पर गईं। कैप्टन ने दानत पीस कर कहा, अब जो हुआ इसके जिम्मेदार तुम हो गए। फैक्ट्री के अंदर शोर मच गया। पंडित ने फौरी अलार्म दबाया, भारत मां की जय, कोई घस आया है। तमाम एजेंट्स अपनी अपनी पोजीशन संभाल चुके थे। दोनों तरफ फायरिंग शुरू हो गई। कैप्टन हैदर और नाजिया ने दाएं तरफ से घसकर कंट्रोल रूम पर कब्जा किया। फेरोज और फतेह ने असलहे के जखीरे को अपने कब्जे में ले लिया। पंडित, अरे मैं तो फकीर हूं, सब तो बस भगवान के लिए था। फतेह, भगवान भी कह रहा होगा, इसे वापस भेजो। ऑपरेशन कामयाब रहा। राके एजेंट्स गिरफ्तार हो गए। पंडित की फैक्ट्री बंद और फैक्ट्री से बरामद होने वाले इसलहे से पाकिस्तान में कम अज कम 20 बड़े हमले नाकाम बनाए गए। आखिरी मंजर में बाबा ठिस अपनी मखसूस अंदाज में सीटी बजाते हुए बोलता है, नकाब ज़दा चेहरे रोज बदलते हैं पर सच हमेशा बेनकाब होता है। रात का पहर गुजर चुका था। कराची के बंदरगाह से कुछ फासले पर वाक़े खाली गोदाम में नीम अंधेरे का राज था, लेकिन इस अंधेरे में एक और साजिश जन्म ले रही थी। कैप्टन हैदर और इनकी टीम ने पिछले ऑपरेशन में पंडित को तो काबू में कर लिया था, मगर अब एक नया खिलाड़ी मैदान में आ चुका था। पप्पू मामो बज़ाहिर एक मिठाई की दुकान चलाता था, लेकिन इसकी रसगला की दिगों में असलहा और डिजिटल चिप्स छुपे होते। कराची की लोकल बसों के जरिए ये सामान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाया जाता। ओए, मामो तो सबके होते हैं, लेकिन ये वाला मामो दुश्मन का दामाद लगता है। मामो आज गलशन हदीदीद की तरफ जा रहा है, लेकिन ट्रक में रस गले नहीं, चपके से ट्रेकिंग चप लगा दी गई है। इसी दौरान एक नया किरदार एंट्री देता है। बाबा ठंडा, बाबा ठिस का कजन, जो हमेशा आइस करीम की गाड़ी चलाता दिखता है, लेकिन हकीकत में वो शहरी इलाकों में राह की सरगर्मियों पर नजर रखने वाला खफिया मुखबर था। बाबा ठंडा, पप्पू, मामू ने आज शेर माल की दुकान से कुछ अजीब सा पैक लिया है, उसमें खुशबू नहीं, धवां है। कैप्टन हैदर ने फौरन टीम को मुतहर्रिक किया। ये फेक आटा या धमाका खेज मवाद हो सकता है, हमें इनके अगले पड़ाव पर पहुंचना है।
इसी वक्त पप्पू मामो का राबता के हेडक्वार्टर दिल्ली से होता है। एक चमकदार स्क्रीन पर साए में छुपा एक किरदार नजर आता है, राफ सामो। अब वक्त है लाहौर शिफ्ट होने का। अगला मिशन वाघा बॉर्डर के करीब है। इस तगड़ रिसीव वर्ड। इधर कराची में फेरोज को मामो की गाड़ी का सिग्नल एक गंदे नाले के करीब से मिलता है, जहां वो मामूली बस ड्राइवर के भीस में किसी को सामान पकड़ा रहा था। फेरोज, यही है मौका, अभी नहीं पकड़ा तो सब खत्म। टीम ने नाले के करीब घात लगाई और जैसे ही मामो ने बेग थमाया, फतेह चीख पड़ा, चाय पियोगे या जेल की हुआ? मामो भागने लगा, लेकिन बाबा ठंडा की आइसक्रीम गाड़ी ऐन वक्त पर उसके रास्ते में आ गई। ये बर्फी ठंडी नहीं, पकाने वाली है। मामो पकड़ा गया। इसके बीग से न सिर्फ हिसास मालूमात निकले, बल्कि एक यूएसबी भी जो भारतीय सफारत खाने के अंदर के किसी फर्द की नकलो हरकत से मुताल्लिक थी। इसी रात पंडित जेल में बाबा ठिस को ख्वाब में आता है। अब भी वक्त है बाबा ठिस, मेरे कमेंट्स को संभालो, तुम्हारा सतारा भी गर्दिश में है। बाबा ठिस, पंडित जी, सतारा नहीं, रा की बदनामी गर्दिश में है। ख्वाब से जागते ही बाबा ठिस ने आसमान की तरफ देखा, सीटी बजाई और कहा, नकाब ज़दा लोग कम होते जा रहे हैं, पर तमाशा बढ़ता जा रहा है। इसी लम्हे फोन बजा। नया मिशन तैयार है और इस बार हदफ है लाहौर का दिल, अनारकली बाजार। एपिसोड 3 खत्म। लाहौर अनारकली बाजार की गहमा गहमी में सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, लेकिन इस शोर शराबे के बीच एक छोटा सा किताबों का स्टॉल वो मरकज था जहां पाकिस्तान के सबसे खतरनाक जासूस की नजरें जमी थीं। कैप्टन हैदर, फेरोज और चौधरी फतेह अपनी नई वर्दियों में अनारकली अंदर दाखिल हो चुके थे। अब की बार इनका सामना था चरण सिंह से, डॉक्टर सिंह से, जो पिछले 5 सालों से लाहौर में एक जाली होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहा था। चौधरी फतेह, यार ये डॉक्टर कम और इंडियन फिल्मों का वलन ज्यादा लगता है। क्लिनिक में दवाई कम, खफिया कैमरे ज्यादा हैं। डॉक्टर चरण का लिंकरा के साथ कंफर्म है। इसके पास एक मखसूस फाइल है जिसमें ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब के खिलाफ जाली बयानी जन्हा से किए गए हैं। आज ये फाइल निकलनी चाहिए। अगर वो बैरून मुल्क चली गई तो पाकिस्तान का उम्मीद बड़ा नुकसान उठा सकता है। उधर डॉक्टर चरण अपने क्लिनिक में एक बुजुर्ग मरीज को देख रहा था, जो दरअसल कोई बुजुर्ग नहीं बल्कि था बाबा ठिस। हाँ, वही कजिन बाबा ठंडा का। डॉक्टर जी, जगर के कमरे में तकलीफ है, शायद दिल को भी कोई राज चब गया है। बाबा जी, आपकी जबान जरा तेज है, आपका इलाज लंबा चलेगा। यह सुनकर बाबा ठिस ने जैब से एक चोरन का पैक निकाला, लेकिन ये आम चोरन नहीं, एक माइक्रोचिप वाली दवा थी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर हैदर की टीम को लोकेशन देती। बाहर खड़े चौधरी फतेह ने सीटी मारी। ओए, ये बाबा ठिस नहीं, नादे अली की लाइन है। एक बार बोले तो दुश्मन थर थर कान पे। तीनों एजेंट क्लिनिक में घसे। डॉक्टर चरण ने फौरन फाइल एक लड़की को थमाई, जो अंदरूनी दरवाजे से निकलकर बाजार की तरफ भागी। मैं फाइल के पीछे जाता हूँ, कैप्टन हैदर। फतेह चरण को घेर, इसे जिंदा चाहिए। इधर फाइल ले जाने वाली लड़की, जो कोड नीम चीतोम चीता खोड़ी थी, छूटे गलियों में दौड़ रही थी। फिरोज ने मोटरसाइकिल पर इसका पीछा किया और जैसे ही वो रानी बाजार के निकट पर पहुंची, एक बाबा गने का रस पीछता नजर आया, लेकिन वो कोई और नहीं, बाबा था। बाबा ठंडा। रस पीना है या राज देना है? चीता कुड़ी अलझ गई और फिरोज ने इसे पकड़ लिया। फाइल वापस आई, डॉक्टर चरण गिरफ्तार हुआ और अनारकली में एक बार फिर अमन लौट आया। वापसी पर गाड़ी में हैदर ने बाबा ठिस की तरफ देखा। बाबा, तुम हर जगह कैसे पहुंच जाते हो? जनरल हफीज ने मेरी रूहानी GPS ऑन की हुई है। चौधरी फतेह,
तो गूगल मैप बंद कर दो, ये बाबा काफी है। इसी लम्हे रेडियो पर खबर चली। पाकिस्तानी एजेंसी ने एक और नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। ऑपरेशन का नाम था नकाब ज़दा लोग। बाबा ठिस ने मुस्कुराकर सीटी बजाई और कहा, अब लाहौर हो या दिल्ली, नकाब गिर चुके हैं, बाकी तुम खुद समझदार हो। कराची के पुराने इलाके लियारी की एक खस्ता हाल गली में सूरज की पहली किरणें जैसे दीवारों पर पड़ी, हवा में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। इस गली के आखिर में एक पोसीदा दरवाजे के पीछे रहता था रुखसाद, चेहरे पर अजीब सा सुकून, आंखों में अलझे ख्वाब और माथे पर जिंदगी के सवालों के ये गहरेल केरें। वह किचन के कोने में रखे तंदूर पर अपनी माँ महूश के लिए नाश्ता गर्म कर रहा था। रुखसाद, उम्मी, आज स्कूल की फीस आखिरी तारीख है, उस्ताद ने कहा है कल तक ना दी तो नाम कट जाएगा। महूश, बेटा आज तेरा बाप कोई मजदूरी ले आए तो कोशिश करेंगे, अल्लाह करम करेगा। लेकिन रुखसाद जानता था इसका बाप जहांगीर अक्सर खालियात ही आता है। शराबावर सिगरेट की बुवास के जिस्म से लिपटे रहती थी। घर में गुर्बत केरियत धीरे धीरे ख्वाबों की बुनियादों में घस रही थी। उसी रोज रुखसाद अपने दोस्त फैजान के साथ किताबें बेचने वाली एक दुकान पर गया। दुकान का मालिक सरदार जफर जवानदरों सिंध से था, अपनी अजीब व गरीब बातों के लिए मशहूर था। सरदार जफर, रुखसाद, किताब से कुछ ना होगा, अगर किस्मत बदलनी है तो बातों में चमक होनी चाहिए। चमक तो है सरदार जी, बस अभी तक रोशनी नहीं मिली। सरदार ने हंसते हुए एक पुरानी किताब दी। ये ले, फकीर वली अल्लाह की लिखी हुई है, शायद तेरी जिंदगी भी बदल दे। इसी रात रुखसाद ने किताब पढ़ी और इसमें एक जुमला था, खामोशी को ताकत बनाओ और दर्द को रोशनी। अगले दिन स्कूल में फीस ना होने की वजह से उस्ताद ने सबके सामने इसे डांट दिया, लेकिन रुखसाद खामोश रहा। वो जानता था इसका वक्त बदलेगा। वो रवैया नहीं, वो सिर्फ सोचता रहा। इधर लियारी थाने में एक नई रिपोर्ट दर्ज हुई। इधर एजेंटों को शबा है कि लियारी की एक पुरानी इमारत में दुश्मन के खफिया पैगामात रिकॉर्ड हो रहे हैं। एजेंसी ने कैप्टन हैदर को कराची भेज दिया। कैप्टन हैदर हेडक्वार्टर में यहाँ कुछ मुख्तलिफ है। लगता है दुश्मन नौजवानों की गुर्बत का फायदा उठाकर उनको वरगला रहा है। डेरिक रुखसाद इसी इमारत के करीब स्कूल के बाद बैठकर मुताला करता था। एक दिन वहां कैप्टन हैदर और चौधरी फतेह पहुंचे और उन्होंने एक खास सिग्नल ट्रेस किया। वही किताब जो सरदार जफर ने दी थी, दरअसल एक छिप से लीस थी। यार हैदर, ये तो पूरा जासूसी नावल है। कैप्टन हैदर, या तो रुखसाद खुद एजेंट है या किसी बड़ी साजिश में इस्तेमाल होने वाला है। रुखसाद को बुलाया गया। पूछगिछ शुरू हुई। तुमने ये किताब कहाँ से ली? सरदार जफर से। वो कहता है किताबें किस्मत बदलती हैं। कैप्टन ने रुखसाद की आंखों में झांका। एक सच्चाई, एक जदोजहद और एक ख्वाब छपा था। हैदर ने फाइल बंद की। तुम पर शक नहीं, लेकिन तुम्हें हमारी मदद चाहिए। तुम अपने इलाके के बच्चों को पढ़ाओ और हमें खबरदार रखो अगर कुछ मशकूक हो। रुखसाद, शायद ये वही रोशनी है जिसकी तलाश थी। इस दिन के बाद रुखसाद लियारी का वो चिराग बन गया जिसने कई और बच्चों के अंधेरे में रोशनी भरी। कराची की ही गली, वह बोसीद हदरू दीवार, मगर अब रुखसाद की आंखों में एक अलग सी चमक थी। इसकी जिंदगी में कुछ बदल रहा था। स्कूल के बाद वह इलाके के बच्चों को पढ़ाता, रात को खुद किताबें पढ़ता और कभी कभार की हैदर से मुलाकात भी करता, जो आबास से एक करीबी इंगरंग केंजर से देखने लगा था। एक दिन थाने में एक इत्तला मसूली। लियारी में एक नई शक्ल इख्तियार कर चुकी मंशियात की तरसील हो रही है, स्कूल बैग्स में छुपाई जा रही है। ये खबर सुनकर कैप्टन हैदर ने फौरन रुखसाद को बुलाया। रुखसाद, तुम्हें अपने इलाके के बच्चों पर नजर रखनी होगी। दुश्मन अब तालीम को ढाल बना रहा है। प्रतमाद अंदाज में, सर, मेरे इलाके बच्चे मेरे भाई हैं। अगर किसी ने उन्हें अंधेरे में धकेलने की कोशिश की तो वो मुझसे बच नहीं सकेगा।
उसी रात रखजाद ने अपने उस्ताद मौलवी बशीर के मदरसे में एक अजीब सी चहल पहल देखी। कुछ मशकूक चेहरे, भारी बस्ते और खफिया सरगोशियां। अगले दिन एक लड़के अकरम के बैग से चॉकलेट के डब्बे बरामद हुए जिनमें सफेद पाउडर छपा था। रखजाद ने फौरन थाने इतला दी। चौधरी फतेह, यार हैदर, ये लड़का तो पूरा जासूस निकला। नहीं फतेह, ये तो मुल्क का सिपाही है, वर्दी के बगैर। चंद दिन बाद रखजाद ने सरदार जफर की दुकान पर 2 नए चेहरे देखे। उनमें एक था भूरा पंडित, एक मजाहिया मर मशकूक किरदार जो बज़ाहिर तेल के इलाज करता और मुस्तकबिल बताता, लेकिन इसकी बातों में अजब तरह की खचड़ी पकी होती। भूरा पंडित, अरे छूटे, तुम्हारे माथे पर रा के पर्चे नजर आते हैं। पंडित जी, नजर के चश्मे साफ करो, ये माथा तो अब कौम की अमानत है। पंडित हिंसा, मगर रखजाद को शक हुआ। वो किसी और जबान में बात कर रहा था जो पंजाबी और बंगाली का अजीब मिलाप लगता था। रखजाद ने ये बोलना सीखा। रखजाद ने पंडित का पीछा किया तो वो शहर के एक पुराने वेयर हाउस में दाखिल हुआ। वहां 3-4 अफराद इकट्ठे थे और हाथों में नक्शे, लैपटॉप और वायरलेस थे। रखजाद ने फोन पर फौरन इतला दी। कुछ ही देर में एजेंसी की गाड़ियां आ गईं। बहुत खूब रखजाद, ये पंडित दरअसल रा का वही एजेंट है जिसे हम महीनों से तलाश कर रहे थे। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया और वेयर हाउस से जदीद जासूसी आलात बरामद हुए। इधर सरदार जफर ने एक बार फिर रखजाद को बुलाया। सरदार, तू अब सिपाही बन गया है? रखजाद, नहीं सरदार जी, बस अपनी गली का मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहा हूं। उसी रात रखजाद छत पर लेटा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी माँ महोश उसके पास आई और उसके बाल सहलाए। तो बहुत बहादुर बन गया है बेटा, अल्लाह करे तो सबका मुहाफिज बने। रखजाद ने चुपचाप अपनी माँ का हाथ थाम लिया। जिंदगी ने जो जख्म दिए थे अब वो मरहम बन रहे थे। रात के सन्नाटे में सरकारी गाड़ी की लाइट्स एक गुमनाम गली को रोशन कर रही थीं। अंदर की नशिस्तों पर मौजूद चारों एजेंट्स ने खामोशी इख्तियार की हुई थी। फजा में बोझलपन था। वो कराची के एक पुराने इलाके में मौजूद एक खफिया मकान की तरफ पड़ रहे थे जहां मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला मिली थी। यही जगह है? एजेंट सलमान ने हल्की आवाज में पूछा। हाँ, हमारे जराये के मुताबिक यहाँ पिछले एक हफ्ते से कुछ मशकूक चेहरे देखे गए हैं। आरिफ ने सर हिलाया। गाड़ी रुकी, दरवाजे आस्ता से खुले। एजेंट्स ने हाथ के इशारों से अपनी पोजीशन संभाली। दरवाज़ हजनंग आलूदा था, पर जब एजेंट बाबर ने हल्की सी ठोकर मारी, वह धीरे से खुल गया। अंदर तारीकी थी, सिर्फ एक कमरे से हल्की रोशनी झलकर रही थी। सब एजेंट्स ने पिस्टल निकाली। जैसे ही वो आगे बढ़े, अंदर से हंसी की आवाजें आए। अरे ओ पंडित जी, ये क्या तावीज दिया आपने? कल तो मेरे बेल ने भी मुझे लात मार दी। ये बाबा ठुस की आवाज थी, जिसने अपना मखसूस गुलाबी रोमाल माथे पर बांध रखा था। साथ में बैठा पंडित मिंखिन नाथ, जिसके कानों में बड़े बड़े कल्ले और हाथ में लकड़ी का छोटा सा कटोरा था, कहकहा लगा रहा था। मैंने तो कहा था ये तावीज सिर्फ सच्चे आशिकों के लिए है। तुम तो दिल फेंक हो बाबा ठुस। इन दोनों के साथ बगल में बैठा मिस्टर झूरा भी हंस रहा था, जो हर बात पर खुद को चीफ समझता था। लेकिन किसी को पता ना था कि वही लोग जिन्हें सब पागल समझते हैं, दरअसल हर महले में खबरों का सबसे पहला जरिया होते हैं। एजेंट्स ने अंदर कदम रखा तो सब खामोश हो गए। बाबा ठुस ने आंखें छोटी करते हुए पूछा, ओहो, ये कौन है? शादी ब्याह का केस है या सियासत का? आरिफ ने सख्त लहजे में कहा, खामोश, ये जगह सरकार की निगरानी में है, सबके शनाख्ती कार्ड निकालो। पंडित ने कटोरा उठाकर कहा, पहले अपना मुकद्दर देख लो, फिर शनाख्ती कार्ड दिखाऊंगा। बाबर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अगर तुम लोगों का मजाक खत्म हो गया हो तो कुछ संजीदा बात कर लें। यहां से कुछ दिन पहले रॉ के एजेंट राबते में आए थे।
हम जानते हैं तुम लोगों ने उनसे मुलाकात की। मिस्टर जूरा ने सर झुकाया। साहब, हमने मुलाकात की थी, पर वजह सिर्फ ये थी कि वो हमें गोश्त देने आए थे। कहा, बस दुआ कराओ। बाबर ने दरिश्त लहजे में कहा, सच बताओ वरना फौरन तुम्हें ले जाना पड़ेगा। पंडित ने आ भरी। ठीक है, बात सुनिए। 2 हफ्ते पहले कुछ लोग आए थे, चेहरे छिपे हुए, बोलने के अंदाज से गैर मुल्की लगते थे। उन्होंने पूछा कि महल्ले में कौन कौन नए लोग आए हैं। हमने कुछ नहीं बताया, बस मजाक में उन्हें झाड़ फूक की बातें बता दें। फिर वो चले गए। आरिफ ने आंखों में शक के साथ कहा, फिर भी तुम्हारी बातें मामूली नहीं, तुम्हारी हर हरकत रिकॉर्ड हो रही है। इसी लम्हे बाहर से एक नौजवान अंदर आया। उसने जीन्स पहनी थी और उसके हाथ में एक ब्रीफ केस था। मैं सेफ हूं, इंटेलिजेंस यूनिट का सबसे कम उम्र रकन। मुझे इत्तला मिली है कि एक रॉ एजेंट आज इसी महल्ले में दाखिल हुआ है। एजेंट्स फौरन हरकत में आ गए। बाबा ठुस ने हंसते हुए कहा, अब तो लगता है यहां फिल्मी सीन चलने वाला है। सीफ ने कहा, हमें शबा है कि एजेंट इस ब्रीफ केस में कुछ डेटा छोड़कर गया है। बाबा, तुमने आज किसी को बाहर जाते देखा? बाबा ठुस ने नरमी से सर हिलाया। हाँ, एक लंबा सा बंदा, काले कपड़े में, जिसके हाथ में चमकता हुआ ब्रीफ केस था। वो कह रहा था कि लाहौर वापस जाना है। आरिफ ने फौरन सीफ की तरफ देखा। यही बंदा है, फौरन नाकेबंदी करो। कमरे की फजा संजीदा हो चुकी थी। बाबा, ठुस, पंडित और जूरा सब अब घबराहट में थे। उन्होंने कहा, साहब, हम मजाक करते हैं, पर मुल्क के खिलाफ नहीं। सीफ ने मुस्कुरा कर कहा, जानते हैं, इसीलिए आपको साथ रख रहे हैं, लेकिन अगर दोबारा किसी मशकूक शख्स से राबता हुआ तो बात मुख्तलिफ होगी। आरिफ ने टीम को कॉल दी। टीम ए, रेलवे स्टेशन पर पहुंचो और ब्रीफ केस वाले शख्स को हर हाल में तलाश करो। जैसे ही एजेंट्स बाहर निकले, पंडित ने कहा, बाबा, आज तो जान बच गई, लेकिन अगली बार कुछ संजीदा तावीज भी रखने होंगे। बाबा ठुस ने हंसते हुए कहा, यही तो जिंदगी है पंडित, हंसी भी, सच भी और सरकार की चप भी। रात के अंधेरे में कराची के रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा छाया हुआ था। हर तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पोजीशन संभाल ली थी। एजेंट सीफ, आरिफ और सलमान स्टेशन की मुख्तलिफ समतों से निगरानी कर रहे थे। इत्तला मुसद्दका थी। रॉ एजेंट जिसके पास वो खफिया ब्रीफ केस था, इसी स्टेशन से लाहौर रवाना होने वाला था। सीफ प्लेटफार्म नंबर 3 पर एक मशकूक शख्स बैठा है, काले कपड़ों में, हाथ में हैंड कैरी है। आरिफ की आवाज वायरलेस पर आई, मैं पहुंच रहा हूं। सेफ तेजी से इस तरफ बढ़ा। प्लेटफार्म पर बैठा वो शख्स बार बार अपने इर्द गिर्द देख रहा था। इसकी आंखों में खौफ था, मगर चेहरे पर एतमाद की तह चढ़ी हुई थी। जब एजेंट करीब पहुंचे, इसने अचानक उठकर भागने की कोशिश की। रुक जाओ, तुम चारों तरफ से घेरे में हो। सीफ की गर्जदार आवाज सुनकर वो लम्हा भर को रका, लेकिन फिर एक जस्त में करीबी रेलवे लाइन की तरफ दौड़ गया। बाबर ने निशाना लिया। जिंदा चाहिए, गोली नीचे मारो। एक धमाकादार आवाज के साथ फायर हुआ और वो एजेंट जमीन पर गिर पड़ा। बाजों में गोली लगी थी। ब्रीफकेस फौरन कब्जे में लिया गया। उसे फौरन सील करके हेडक्वार्टर भिजवा दिया गया। दूसरी तरफ महल्ले में बाबा ठुस, पंडित मखन्नाथ और जूरा अभी भी सदमे में थे। यार पंडित, ये क्या मुसीबत थी? वो ब्रीफकेस तो हमारे घर के पास छुपा रहा। बाबा ठुस ने रुमाल से पसीना पूंछा। मैंने कहा था ना, कभी कभार तावीज से ज्यादा अक्ल की जरूरत होती है। तुम तो हर बार कहते हो, पर खुद कभी इस्तेमाल नहीं करते। जूरा ने कहा, चलो अब कुछ दिन सुकून होगा। सरकार की गाड़ी गई है, हम भी थोड़ा धंधा दोबारा चालू करेंगे। इसी लम्हे बाहर से एक शोर उठा। 2 बच्चे भागते हुए आए। बाबा जी, पंडित जी, वो
वो महल के निकट पर पुलिस फिर से आई है, कहते हैं किसी और को पकड़ने आए हैं। बाबा ठुस ने आंखें मटकाएं। फिर से, अब कौन सा रॉ वाला छुपा बैठा है यहाँ? पंडित ने परेशान होकर कहा, इस बार तो लगता है कोई अंदरूनी बंदा है, अपना ही कोई गद्दार। हार्टर में बराबर कफकिस खोला गया, अंदर से एक हार्ड ड्राइव निकली, जबासे निजाम में लाया गया। तब एक वीडियो फाइल सामने आई। वीडियो में एक शख्स बैठा था, चेहर हवाज़ नहीं था, लेकिन आवाज में भारतीय लहजा था। ये पाकिस्तान का अंदरूनी नेटवर्क है, जहां हमारे एजेंट्स मौजूद हैं। हमारे राब्ते मजबूत हो चुके हैं और जल्द हम एक बड़ा धमाका करेंगे जो ज़ुर्ब-ए-अज़ब के बाद की सबसे बड़ी खफिया जंग होगी। एजेंट्स के चेहरों पर संजीदगी छा गई। आरिफ ने दांत पीसते हुए कहा, ये लोग समझते हैं हम सो रहे हैं, अब इनकी नींदें हम उड़ाएंगे। सीफ ने सर हिलाकर कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, असल जंग अब शुरू होगी। आम महले में बाबा ठुस ने चाय का कप हाथ में लिया और मुस्कुराकर पंडित से कहा, यार पंडित, सोच रहा हूं अपना तावीज ब्रांड बना लूं। रॉ वाले भी आए, सरकार वाले भी। अब तो लगता है हमारी शहरत हर तरफ फैल गई है। पंडित ने हंसते हुए कहा, अगर दोबारा किसी एजेंट ने हमारे पास पना ली तो हम इसे तावीज के साथ साथ खचड़ी भी देंगे। जूरा ने कहका लगाया, और बल भी, क्योंकि अब ये महला सिर्फ महला नहीं रहा, ये महाज बन चुका है। रात की तारीकी में कराची का आला एक बार फिर शोर में डूबा हुआ था। गलियों के निकट पर पुलिस, हिसासादारे और कुछ लोग गसूल कपड़ों में मशकूक अंदाज में चक्कर काट रहे थे। महले के फिजा में फिर से वही बेचीनी वही सर गोशियां गूंजने लगी थे। बाबा ठुस ने कमर पर हाथ रखकर जमाई ली, यार पंडित, यह महला तो जैसे जासूसों का हटास्पाट बन चुका है। हर हफ्ते कोई नया खफिया ऑपरेशन हो रहा। पंडित ने नाक पर चश्मा चढ़ाते हुए कहा, मैंने तो कल रात को ख्वाब में देखा था कि एक नकाब पोश आया और मेरे तावीज को छीन के भाग गया। जूरा हंसते हुए बोला, शायद वो तावीज रॉ का एजेंट ले गया हो, अब तफ्तीश के लिए ले जाकर DNA करेगा। ये सुनते ही सब कहकहे में डूब गए। दूसरी तरफ सीफ और इसकी टीम ने लाहौर हेडक्वार्टर पहुंचकर ब्रीफिंग दी। नई मालूमात के मुताबिक शहर के वसत में एक खफिया इसलाहा फैक्ट्री मौजूद थी जो मकामी धंधों के पर्दे में दुश्मन के लिए काम कर रही थी। इस बार हदफ था ऑपरेशन साये की आंख। कर्नल हमायूं ने सख्त लहजे में कहा, हम दुश्मन के हर साये को भी पहचान लेंगे और हर नकाब को उतारेंगे। इस बार हम सिर्फ पकड़ने नहीं, जड़ से खत्म करने आए हैं। वापस कराची महले के एक वीरान मकान से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। झूरा ने कान लगाया, यार ये तो लगता है कोई दुआएं पढ़ रहा है या कोई काला इल्म। बाबा ठुस ने सर खजाकर कहा, या फिर नया रॉ एजेंट आया है जो पंडित जी के दुआओं से बचने की कोशिश कर रहा है। पंडित ने गुस्से से कहा, अपने इल्म को मजाक मत समझो झूरे, अगली बार तेरे गिंजपन पर तावीज लिख दूंगा। झूरा ने जोर से कहा लगाया, बाबा जी, रॉ भी सोच रहा होगा कि ये क्या महला है। हर गली में तावीज, हर दीवार पर चोरन का इश्तिहार और बीच में फौज। सेफ की टीम ने इस खफिया फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री के अंदर दुश्मन की जदीद मशीनरी, असलहे के ढेर और कई कूक चेहरे मौजूद थे। सबको काबू में ले लिया गया, लेकिन एक शख्स जिसे काला नवाबी नवारा भी कहा जाता था वहां से निकल गया। सीफ ने सिगरेट जमीन पर फेंक फेंक कर जोते से मसल दिया, अब काला नवाब हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है। आरिफ ने जवाब दिया, हमें इसे किसी भी कीमत पर रोकना होगा क्योंकि अगला हमला वो खुद करेगा। महले में बाबा ठुस ने नया बैनर लगवाया, बाबा ठुस स्पेशल, दुश्मन के वार से बचाव का तावीज। झूरा ने नीचे लिखवाया, सिर्फ आज पहला तावीज मुफ्त, दूसरा दुश्मन को मार। मार। पंत ने आंखें घुमाई, ओ भाई हम सीरियस लोग हैं, ये मजाक नहीं। बाबा ठुस हंसते हुए बोला, ओ पंडित जी, अब ये महला नहीं महाज है और हम महाज के मजाक हैं।
महल के बच्चों ने तालियां बजाईं, औरतें खिड़कियों से झांकें और सब हंसने लगे। लेकिन इस हंसी के पीछे एक गहरी आंधी थी, वो आंधी जो काला नवाब के कदमों की धमक के साथ करीब आ रही थी। कराची की रातें खामोश नहीं होती बल्कि चीखती हैं, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अहले राज ही सुन सकते हैं। बाबा ठुस नीम दराज चारपाई पर लेटा आसमान की तरफ देखते हुए बड़बड़ा रहा था। चांद पूरा है, लेकिन सच आधा, और सच तभी मुकम्मल होता है जब नकाब उतरता है। झूरा अपनी दुकान के बाहर बंच पर बैठा चाय पी रहा था। पंडित ने करीब आकर सरगोशी में कहा, आज रात कुछ होगा, मेरी हड्डियां बता रही हैं। झूरा ने कहा लगाया, यार पंडित, तेरी हड्डियां तो उस दिन भी कुछ बता रही थीं जब तू पकोड़े के तेल में फंसल गया था। बाबा ठुस ने एक गहरा सांस लिया। नहीं झूरे, पंडित इस बार ठीक कह रहा है, आज कुछ बदलेगा, किसी का चेहरा, किसी की नीयत या किसी का नसीब। दूसरी तरफ लाहौर में कैप्टन सीफ और इसकी टीम अब काला नवाब की तलाश में थी। मिलने वाले शवाहिद के मुताबिक काला नवाब अब कराची के एक खफिया ठिकाने में छुपा हुआ था। कर्नल हमायूं ने नक्शे पर उंगली रखकर कहा, यह है उनका अगला हदफ, बंदरगाह के करीब वाक़ा वो गोदाम जहां गैर कानूनी इस्लाहा मुंतकिल किया जा रहा है। सीफ ने लम्हा भर सोचा, इस बार हमें खामोशी से वार करना होगा, अवाम को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। आरिफ ने कहा, बाबा ठुस, झूरा और पंडित वो महले में बहुत कुछ देख चुके हैं, उनसे मदद ली जा सकती है। कर्नल ने सर हिलाया, खतरनाक मगर मौसर। रात के 2 बजे झूरा अपनी गली के निकड़ पर खड़ा था जब एक नकाब पोश शख्स ने आकर आहिस्ता से कहा, तुम्हारा नाम झूरा है। झूरा हचकिचाया, हाँ, और तुम कौन हो? नकाब पोश ने कहा, खामोशी इख्तियार करो और आओ मेरे साथ, तुम्हें किसी खास से मिलवाना है। झूरा के कदम खुद बखुद चलने लगे। इधर बाबा ठुस ने ख्वाब में देखा कि गली में एक बिल्ली मुसलसल घूर रही है। इसकी आंखें सब्ज थी और वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान में बदल गई। अचानक बाबा ठुस उठा, ये काला नवाब की चाल है, वो रूप बदल सकता है। पंडित ने सर पकड़ लिया, अगर ये बात सच है तो हमें अपने तावीज को अपडेट करना होगा। दूसरी तरफ काला नवाब वाकई रूप बदलकर महल्ले में दाखिल हो चुका था। वो अब एक शाइस्ता उर्दू बोलने वाला दुकानदार बन चुका था, जिसकी हर बात में मीठा जहर था। एक बच्चा जब उसके दुकान के करीब गया तो काला नवाब ने आहिस्ता से कहा, कभी किसी का चेहरा मत देखो, उसकी नीयत पहचानो। बच्चा फौरन भाग निकला। महले में अफवाहें फैलने लगे, नकाब पोश फिर से आए हैं, किसी ने झूरा को रात के वक्त किसी के साथ जाते देखा, पंडित के तावीज काम नहीं कर रहे, बाबा ठुस खामोश है। इधर सीफ और इसकी टीम कराची पहुंच चुकी थी। झूरा उनके साथ खफिया मकाम पर मौजूद था। झूरा ने कहा, इस बार कुछ नया हो रहा है, काला नवाब कोई आम दुश्मन नहीं, वो दिमाग है, गोली नहीं, जो बंदूक के बगैर कत्ल करता है। सीफ ने कहा, तो फिर हमें उसका दिमाग पढ़ना होगा, गोली नहीं चलानी। अगले दिन महले में एक इश्तिहार चस्पा था, सच्चाई की तलाश में नकाब खुद उतर जाता है, और एक सतर नीचे, ये सफर अभी बाकी है।